خاور مانیکا پر پی ٹی آئی کے وکیلوں کا حملہ۔ نکاح کیس کی سماعت کے بعد خاور مانیکا کو گلے سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا، تھپڑ مارے۔ دوسرے وکیل بڑی مشکل سے چھڑا کر بھاگے۔ کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی خواتین نے شیم شیم کے نعرے لگائے اور پانی کی بوتلیں پھینکیں۔ شور ہونے پر جج کیس کا فیصلہ سنائے بغیر اٹھ گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، خاور مانیکا نے سماعت کے دوران غیر اخلاقی باتیں کی، وہ باتیں ہم یہاں بتا بھی نہیں سکتے۔ شبلی فراز خاور مانیکا پر فحش گفتگو الزام لگایا۔ عمر ایوب نے کہا، خاور مانیکا کی اشتعال انگیز گفتگو پر ساتھیوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا۔ خاور مانیکا تاخیری حربے اختیار کر کے کیس لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ نیب ترمیم قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ میں حکومتی پالیسیز پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ سماعت کرے گا۔ بانیہ پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوں گے۔ گزشتہ سماعت پر بھی بانیہ پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے۔ بانیہ پی ٹی آئی نے نیب ترمیم کو چیلنج کیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مقدمہ براہ راست نشر کرنے کی درخواست دی ہے۔ نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت۔ خاور مانیکا کا جج شاہ رخ اور ارجمن پر عدم اعتماد کا اظہار۔ خاور مانیکا کے وکیل نے کہا، ہمارا کیس کسی اور عدالت کو منتقل کر دیں۔ جج شاہ رخ ارجمن نے کہا، عدم اعتماد کی درخواست پہلے بھی خارج ہو چکی، کیس کسی اور عدالت کو ٹرانسفر کرنا ہائی کورٹ کا اختیار ہے۔ عدم اعتماد کے بعد جو فیصلہ آیا وہ متنازع ہو جائے گا۔ جج شاہ رخ ارجمن کا ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ خاور مانیکا نے آج کھلی عدالت میں مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ شکایت کنندہ اور وکیل نے ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے کارروائی کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ اعتراض اٹھانے کے بعد فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ اپیلوں کو بجاز دائرہ اختیار کی کسی عدالت میں منتقل کیا جائے۔ اپیلیں نپٹانے کے لیے ٹائم فریم بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ پھر 3.5 سال ماشاءاللہ مانیکا صاحب اس وقت تک تو خیال نہیں آیا کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا گیا، تو اس کے بعد وہ ماشاءاللہ یو ٹرن لے کے بولنا شروع کر دیے۔ سکھا پڑھا کے اس کو بھیجا گیا کہ تم نے شور شرابہ کرنا ہے، اور اس کے وکیل صاحب کو بھی ماشاءاللہ کہا گیا کہ تم نے عدم اعتماد کرنا ہے۔ توہین عدالت کیس میں خاور مانیکا اور وکیل کو بھی سزا ہوگی۔ خاور مانیکا کو سکھا کر بھیجا گیا کہ عدالت میں شور شرابہ کرنا ہے۔ خاور مانیکا کو پہلے یاد نہیں تھا، جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو انہیں یاد آ گیا۔ پیٹا رہنما سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں، گالیاں دے کر جج پر اظہار عدم اعتماد کرنا درست طریقہ نہیں ہے۔ یقین ہے چیف جسٹس جج کی درخواست مسترد کریں گے اور فیصلہ سنانے کا حکم دیں گے۔ خاور مانیکا کہتے ہیں، میں نے آئینہ دکھایا تو عدالت میں شور مچ گیا، کوئی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کی، ورنہ جج ہی مجھے روک دیتے۔ جج سے درخواست کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر، مجھے فیئر ٹرائل نہیں لگ رہا۔ کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نکاح کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی پروگرام پریس کانفرنس میں کہا کہ خاور مانیکا نے بانیہ پی ٹی آئی کے لیے غلیظ زبان استعمال کی۔ بانیہ پی ٹی آئی کو جیل میں کچھ دن گزارنا پڑیں گے۔ بانیہ پی ٹی آئی کے مقدمات میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا۔ ہمیں ڈر ہے کہ عنقریب بانیہ پی ٹی آئی پر مزید مقدمات بنائے جائیں گے۔ توشہ خانہ سے متعلق چوتھا مقدمہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس وقت بانیہ پی ٹی آئی کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا۔ رؤف حسن کے حملہ آوروں کی شناخت میک اپ نے مشکل بنا دی۔ پی ٹی آئی ترجمان، حملہ کیس کی تفتیشی ٹیم نے 2 کلومیٹر تک کی سیف سٹی فوٹیج حاصل کر لی۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق خواجہ سرا گاڑی پر سوار ہو کر ستارہ مارکیٹ پہنچی۔ نمبر پلیٹ مدھم ہونے کی وجہ سے گاڑی کا ڈیٹا نہیں مل سکا۔ تفتیشی ٹیم کو حملہ آوروں سے متعلق نادر رپورٹ کا انتظار۔ ٹیم کا دعویٰ ہے کہ رؤف حسن تفتیش میں تعاون نہیں کریں گے۔
सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी गए सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन के नाम खत। हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह बता दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तनकीद बिला जवाज करार दे दी। लिखा 1953 में ईरानी सदर मोहम्मद मुसद्दिक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना और ईरानी तेल पर कब्जा करना 7 दहाइयों बाद जाहिर नहीं होना चाहिए। क्या ये मुजरिम और मजलूम के लिए बेहतर नहीं होगा? खत में इसराइली रियासत के काम का भी जिक्र। लिखा लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने यकतरफा फैसला करके नस्ली बुनियाद पर रियासत कायम की और वहाँ पहले से रहने वाले निकाल दिए गए। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, कई लोग मार दिए। जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस अभी तो पार्लियामेंट के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा, काला कानून कहूँगा। पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। रजा रब्बानी कहते हैं इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। कायम मुकाम सदर ने कोई वजह पेश नहीं की, ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं। फारूक एच नाइक ने कहा ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरमीम वापस ली जाए, ये काला कानून है। 14 दिन से ज्यादा रिमांड कानून की नफी करता है। सवाल यह है जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सजा क्यों ना हो? मुल्जमान को 14 साल की सजा सुना दी जाती है। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आ रही। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला सकते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। इस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव लीक ने किया। मैं अवाम की राय के हक में हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ से वफाकी सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने की तजावीज़ ली गई। इजलास में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर मुशावरत। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तेफाक। नून लीग का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ के इक़दामात की तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बुधमत के रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए बुधमत रहनुमाओं के गिरां कदर खदमात का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान को अपने बुधमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है। वफ्द का बुधमत विरसे के तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वफ्द की बुधमत विरसे के मकामात और सकाफ़ती अशिया के तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ़। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में खौफनाक हादसा। मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच तुर्बत से क्वेटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में तुर्बत यूनिवर्सिटी के 2 असातिज़ा डॉक्टर नेमतुल्लाह काकड़ और डॉक्टर आमिर ज़ेब समेत मकरान मेडिकल कॉलेज के 2 तलबा भी जाँ बहक हुए। अहम कबायली सरबराह का बेटा जख्मियों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सखर, लाड़काना, दादू और कुंवर शहादात कोट में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दिन भर तपता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात सिंध और पंजाब में 20 जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। जामशोरों में 2 भाई गर्मी की बायस इंतकाल कर गया। बच्चे घर के बाहर खेलते हुए अचानक बेहोश हुए। हॉस्पिटल इंतजामिया ने कहा गर्म हवा लगने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। पानी की कमी भी मौत की वजह हो सकती है। हैदराबाद में एक और पुलिस वाला हीट स्ट्रोक के बायस सिल बसा।
के इलेक्ट्रिक सिंध के सरकारी इदारों में भी ओवर बिलिंग में मुलविस 10 साल में 20 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। वज़ीर तवानाई सिंध का इंकशाफ नासिर हुसैन ने कहा, रवां साल भी ऑडिट में 2 अरब से ज़ायद की ओवर बिलिंग साबित हुई। शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए हुकूमत मुश्तरका कमेटी बनाएगी कि इलेक्ट्रिक को स्मार्ट मीटर के लिए अरबों रुपए दिए गए। सरकारी इदारों में ताहाल स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। अदालत का पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस, 6 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है, बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वज़ीर शेर में कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने फरमाया, इस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी, फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई? आप इक़्तिदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हैं? कराची में चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला डीएसपी रंगे हाथों पकड़ गया। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के साथ AVLC दफ्तर पर स्टिंग ऑपरेशन। निजाबत हुसैन बतौर डीएसपी AVLC ईस्ट तैनात था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000, दूसरी 20,000 में फरोख्त की गई। स्टिंग ऑपरेशन से पहले टीम सरेआम ने तमाम सबूत जमा किए। बरामद मोटरसाइकिलें मिलने के बाद असल मालिक को इतला की बजाय फरोख्त की जाती। सरेआम ने टीम डीलर्स और मोटरसाइकिलों की फरोख्त से मुतालिक गुफ्तगू रिकॉर्ड की। कराची पुलिस चीफ ने नोटिस ले लिया। डीएसपी को कराची पुलिस ऑफिस क्लोज करने का हुक्म। DIG CIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल से दूध ही नहीं पिया। महंगाई की वजह से किसी ने 6 महीने से अंडा नहीं खाया है और ये वो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 5 से 6 साल 7 साल। फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले मरहले में हम 100 स्कूलों से शुरू करते हैं। कोई बच्चा भूखा स्कूल नहीं जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का 100 स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान। कहते हैं, सर्विस से पता चला कि महंगाई के बायस किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। मुफ्त नाश्ते के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस। सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पहले मरहल में 100 स्कूलों में नाश्ते का एहतमाम किया जाएगा। इसराइल ने फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश तेज कर दी। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटों में 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 280 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा की खैमा बस्ती पर वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। फ्रांस की पार्लियामान में रुकने असम्बली ने फलस्तीनी झंडा लहरा दिया। डब्लिन में पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। रफा में इसराइली दरिंदगी ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा मुहिम जोर पकड़ गई।